Anatomy, the medical version of the meme, ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे. So indeed, you study entire day, 80% of the time you study anatomy, but still at the end of the day, you can't remember the attachments, the relation, the nerve supply, the blood supply of anything. And that is why it is very frustrating कि आप किसी चीज को टाइम नहीं दो, फिर वो नहीं बने, that's a different thing. But when you give time and efforts and still you feel like you are at a zero level, then that is what makes anatomy the most difficult subject kind of in MBBS first year. So today in the second updated version of how to study anatomy, I have already made a video on how to study anatomy on my channel, which was a couple of years back. So today we will see the updated version, focusing more on how to remember anatomy and what are the mistakes that students commit, right? So today I have with me a very special character, Ravi. Okay, I'll introduce you to Ravi and I will tell you that क्या mistake Ravi करता है और वो मिस्टेक आप भी यदि करते हो तो आपको उसे कैसे रेक्टिफाई करना है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, लेट्स बिगिन. आई एम अक्षय जुनेजा, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट, and today I'll tell you about how to study anatomy. Please consider subscribing the channel for more such updates. So now रवि का हम देखने जा रहे हैं टाइमलाइन. तो फर्स्ट लेसन या फर्स्ट मिस्टेक व्हाट रवि इज कमिटिंग इज रवि इज ओवरवेल्म्ड बाय अपर लिम्ब. ठीक है, रवि ने कॉलेज सपोज अभी आज के सिनेरियो में जैसे आप लोगों के साथ भी हुआ है, मैनी ऑफ यू हैव जॉइन्ड द कॉलेजेस आफ्टर इट बिगेन फ्रॉम 1 month, राइट? सो रवि इज ओवरवेल्म्ड बाय अपर लिम्ब. या तो कॉलेज में ऑलरेडी हो चुका है या अपर लिम्ब भी उसको इतना ज्यादा लग रहा है दैट ही हैड गॉट अ ह्यूज बैकलॉग इन द कॉलेज and now he can't understand anything, right? So my suggestion, my lesson for Ravi would be always go with the flow and never miss out what your college teaches. So now let's see this thing. So now suppose करो you are आपका कॉलेज में अभी लोअर लिम्ब पढ़ा रहे हैं, you started joining the college after lower limb, so आपका काफी पोर्शन मिस आउट हो गया, right? So the first lesson is you need to never miss out on your college lectures. Now whenever you study anatomy, you have to always devote maximum of time, your time in the college itself. घर आने के बाद even if you wish to study, which is very less likely possible in first year, then you should study physio biochem as well, right? Because घर आने के बाद anatomy पढ़ने का इतना सेंस नहीं है, आप वहाँ पे काफी टाइम दे रहे हैं, right, from your lecture to your dissection, right? So lower limb रवि को अभी फोकस करना है, कोई बात नहीं. If even he has missed out general anatomy, upper limb, everything will be covered later on. ठीक है, अभी what he need to do is he need to start covering lower limb from whatever his college is teaching, and meanwhile on Sundays या जब भी उसको कोई holiday मिलता है, start covering upper limb थोड़ा थोड़ा. I'll tell you how to cover it, but first lesson is do not miss out your college lectures. आपके कॉलेज में क्लास हो रही है, आपको ऑस्टियोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, आपको डिसेक्शन कराया जा रहा है, you need to attend it very well, because anatomy ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद से नहीं पढ़ा जा सकता है, right? फिजियो में कंसेप्ट आप खुद से पढ़ सकते हैं, anatomy में you need to be there, listen to your teacher, watch the animation and watch the dissection. So this is the first learning for Ravi. So before we proceed, I want to tell you about a very important update of Prep Ladder, in which the Notes 4th edition has been launched, and there are really very much upgrades and additions what you can look upon. So like this is your biochemistry notes. I'll tell you what are the features that have been added. So first of all, there's have been a box added of previous year questions. So now what happens, you study a topic for say NEET PG perspective in such, so you need to not worry कि इस topic पे से क्या question आता है. So once you study the basics of carbohydrate, even if you are MBBS first year student for your prof exams, you can always know that what kind of question has been asked from this particular topic, so that you can get there itself, which is a very great feature. Then if you will proceed, there are features of important information boxes. So whatever important information is there which you can never forget, and this will help you when you are revising the topic. You should revise this thing first. So this important information boxes have been added, and you can access them in their notes also. So now how to remember boxes are again added. So whatever mnemonics if needed of any particular topic, so that will be added in the notes itself, and you will be getting some more kind of crisp content कि उसको आप कैसे याद रख सकते हो. So this is how you can look at the notes as well. Then there are something like, suppose this is very important in medicine या biochemistry, even when there are certain dosing. Okay, so like here it is dosing of nilparoral for 6 hours. So now they have told कि कैसे उसको you can have a real life example of how it is applied. So in application part, this will become very important. Then all the images have been added very nicely.
there are highlights of whatever is important for you, timelines if there are any, year sort of. Then there are some sort of blanks, fill in the blanks card, which can help you remember the stuff once you're practicing. There are a lot of clinical questions which have been added in that as well, and there's also an outline of the unit, so that when you start studying anything, you know why are you studying for that. Okay, so on the app many notes are available for free, especially of biochemistry. So I'll mention the link below in the description. Kindly check out that link, and in that you can review for yourself the notes, that how you can use these notes and how you can also get the notes for free on the app of biochemistry as such. So now this is again, important topics list has been provided, that once and for all this will be helpful in your prof exams as well as mainly on your NEET PG preparation. So now this is the main features of the notes which I wanted to share with you, and these notes are some kind of revolutionary stuff which is making things a little bit of easy. So now let's continue with our video, that how you can study anatomy further. Now Ravi studies osteology, likes it pretty much, okay, but he can't retain the attachments, nerves, and ultimately Ravi get trapped, right? So now what happens, suppose करो आपकी ऑस्ट्रोलॉजी क्लास लगती है, आपको क्लेविकल पढ़ाया गया, you liked it very much, okay? Now आप घर जाने के बाद या whenever you started studying clavicle, but you understood कि जो attachments है, so if I say clavicle पे ये muscle attach हो रही है, so right now you have just begun the process. So this is the lesson, that this is your first step of reading that particular unit. तो अगर ऐसे यू कि क्लेविकल पे सपोज 20 मसल अटैच हो रही है, आपको तो अभी एक भी नहीं पता, तो दैट विल बिकम प्योर क्रैमिंग प्रोसेस कि ये रट लो, यहाँ पे अटैच होता है, यहाँ पे अटैच होता है. नहीं, दिस इज द रॉन्ग वे. फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट. यू नीड टू डू टू थिंग्स. फर्स्ट स्टेप हार्डेस्ट है, क्लेविकल पे बहुत सारे अटैचमेंट आपको नहीं पता, ठीक है, तो यहाँ तो जल्दी से एक बार पूरी लंबाई ना पाओ, कितनी लंबी हमारी जर्नी है, राइट. सो सपोज आई एम सेइंग कि क्लेविकल पे ये सारे अटैचमेंट्स है, ठीक है. तो अब आज की तारीख में यू गाइस हैव यूट्यूब, यू गाइस हैव गूगल एज वेल एज यू गाइस हैव स्टैंडर्ड बुक्स. तो जस्ट गो थ्रू कि क्या नर्व है, वो आगे चल के अगर उसको आप कोर्स देख पाओ कि अच्छा यहाँ से रिलेट होती है, कौन सी मसल अटैच हो रही है, तो यहाँ पे ये मसल रहती है क्या, तो एक उसका आप ओवरलुक ले लो कि हाउ डज इट लुक लाइक, ठीक है. दिस इज द वन वे. सेकंड वे इज टू जस्ट रिलैक्स, ठीक है. यू नीड टू जस्ट जहां पे जो ऑस्ट्रोलॉजी में एक बार पढ़ो उसको एक बार पढ़ के अभी छोड़ दो. जब पूरा यूनिट कवर होगा तब आपको ऑटोमेटिकली वो अटैचमेंट याद हो जाएंगे. आपको यहाँ पता नहीं है कौन सी मसल है, तो हाउ यू विल रिमेंबर इट, राइट. सो फर्स्ट लेसन इज कि यू नीड टू फोकस कि अभी आप बस एक रफ आइडिया बना लो कि क्लेविकल पे क्या अटैचमेंट है. फिर जैसे जैसे आप वो अटैचमेंट को थ्योरी में पढ़ते जाओगे कि ये मसल यहाँ पे आती है, तो वापस जब आप मसल का ओरिजिन इंसर्शन पढ़ते हो ना, तो वापस बोन पे जाया करा करो. तो डोंट गेट कि यार ऑस्ट्रोलॉजी पढ़ाते तो बहुत अच्छे से बोन का अटैचमेंट, पर याद कुछ नहीं रहता. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू वॉच द कंप्लीट पिक्चर टू अंडरस्टैंड द बेसिक इंट्रो, राइट. Then the second mistake is Ravi initially liked dissections. Ravi को dissection hall में मजा आता था, but later उसने सोचा कि यार हम बस फैट ही क्लियर करते रहते हैं, फेशिया ही क्लियर करते रहते हैं, है ना. एंड रवि की जो फ्रेंड है रिया स्पेशली, सो वो पढ़ाई कर रही है और वो डिसेक्शन नहीं कर रही है, तो उसको लगता है यार मैं भी पढ़ लेता हूँ, इसी बहाने थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी, राइट. सो दिस इज समथिंग मेनी स्टूडेंट्स डू कि वो डिसेक्शन को शुरू में काफी जोश से शुरू करते हैं, बट लेटर ऑन वो सब छूट जाता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेसन नंबर 3, डिसेक्शन मे लुक लाइक लेस यील्डिंग, बट इट इज वन टाइम इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिसेक्शन में आप चाहे थोड़ा बहुत ही पढ़े, मतलब अगर आपको आज बताया ये नर्व होती है, इस आर्टरी के पास में जाती है, तो इवन इफ यू लर्न इतना छोटी सी चीज, बट इट विल रिटेन इन द लॉन्गर रन. ओके, सो व्हेन यू आर अटेंडिंग द डिसेक्शन, टिपिकली इफ इट इज ऑफ 2 hour सेशन, you need to also make friends. So focus 1 hour you should do dissection. Study the theory only related to dissection at that time. Maybe Cunningham or maybe your BD Chaurasia. That's not an issue. But you need to understand जो dissection में हो रहा है उस पर ध्यान दो, और 1 घंटा आप अपने दोस्तों के लिए भी निकाल लो, right? So maybe you can divide your tenure, but please don't miss out on the dissection. It is very important. It will help you to remember the things in a long run. Okay. Now next mistake is कि Ravi failed in his first part completion test. रवि की सेशनल हुई, ही फेल्ड इन एनाटॉमी, एंड नाउ ही इज वेरी वरिड कि मेरे से तो अभी पास होते नहीं बन रहा है, मैं फाइनल्स में कैसे पास होऊंगा, राइट. सो लेसन नंबर 4 इज फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पार्ट कंप्लीशन या कोई भी सेशनल टेस्ट हो, उसमें बहुत सारे लोग फेल होते हैं. सब अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एमबीबीएस में फेल हुए हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू विल नॉट मेक इट टू द फाइनल. सो फर्स्ट काम योरसेल्फ, एंड नाउ लिसन, व्हाट यू नीड टू डू इज व्हेंस यू स्टार्ट स्टडीइंग एनी टॉपिक, जैसे कल से आप कुछ भी पढ़ना शुरू करोगे, एक कॉपी बनाओ जिसको कहो डायग्राम कॉपी. ओके, तो डायग्राम कॉपी को आपको क्या करना है कि आपको उसके एक पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है.
अगर आप यहाँ पे सपोज आज आप पढ़ रहे हो फेशियल नर्व, तो फेशियल नर्व का सिर्फ डायग्राम बनाओ इन द फर्स्ट कॉलम रफ, मतलब आपने अभी ये बुक देखी, इसमें से यू हैव ओपन्ड एनी ऑफ द डायग्राम, तो अभी आप सिर्फ ये जो डायग्राम है इसको प्रैक्टिस करो बिना थ्योरी पढ़े, अभी आपको इस पार्ट की थ्योरी नहीं पता है, ओके। देन व्हेन यू गो टू द सेकंड पार्ट ऑफ दैट पेज, तो अब आप डायग्राम देखते जाओ और बुक की थ्योरी पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि जो 80% यहाँ पे लिखा रहेगा ना वो डायग्राम में ही दिख जाएगा। तो आपको बस वही याद रखना है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, और डायग्राम से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बट डायग्राम में दिख नहीं रहा है, तो उसको आप एज अ थ्योरी पॉइंट लिखो, ठीक है। तो ये आपका एक पेज है, आपके शुरू के 2 कॉलम में डायग्राम आ गया और अगले कॉलम में उससे रेलेवेंट थ्योरी आ गई, ये आपका टॉपिक खत्म। फेशियल नर्व सिर्फ डायग्राम बनाओ, डायग्राम को एक्सप्लेन करो अपने खुद के वर्ड्स में, डायग्राम को देख देख के, फिर कुछ पॉइंट्स अलग थ्योरी के याद रखो जो डायग्राम में नहीं दिख रहे हैं बट इंपॉर्टेंट है, राइट। अब अभी 2 कॉलम और खाली है, तो इनको क्या करो, तीसरे कॉलम को आप अपने हिसाब से रिवाइज करो। लाइक रिवाइज करने का एक स्पेस रेपिटेशन तरीका होता है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, डे 1 पे पढ़ो, डे 3 पे रिवाइज करो, डे 7 पे रिवाइज करो, डे 21 पे रिवाइज करो, बट ये पॉसिबल हर किसी से नहीं हो पाता इन द फर्स्ट ईयर। सो आपको जब भी टाइम मिले, थोड़ा गैप हो जाए, तो तीसरी बार वो डायग्राम एज इट इज कॉपी करो बिना देखे, ठीक है, ट्राई करो उसको फॉर्मुलेट करने का। और चौथी बार वो डायग्राम आपको वापस से बनाना है, लेकिन अब आपको कब बनाना है, जब आपकी पार्ट कंप्लीशन टेस्ट आने वाली हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपका अगर लोअर लिम्ब अभी आपका चल रहा है, तो आपने ये डायग्राम कॉपी शुरू से बनाना शुरू कर दी है, तो जब आपका टेस्ट होगा ना, तो आपको 1 दिन लगेगा बस पूरा लोअर लिम्ब रिवाइज करने में, बिकॉज आपके पास सारे डायग्राम है, सारी रेलेवेंट थ्योरी है। तो अब आप इस बुक को बंद भी कर सकते हैं 1 दिन पहले एग्जाम के, आपके पास बस डायग्राम थ्योरी, उसको रिवाइज करो, एक और बार नीचे बनाओ, पेपर दे के आओ। आई विल गारंटी यू कि आपका जो भी स्कोर है वो बहुत अच्छा आएगा, बिकॉज एक चीज होती है एनाटॉमी को अच्छे से पढ़ना, पूरी चीजें पढ़ना, विच इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट स्कोरिंग इन एनाटॉमी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। स्कोरिंग आप देखोगे जिसकी ड्राइंग अच्छी है, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, वो भी आपसे अच्छा स्कोर कर लेगा। सो इट्स ऑलवेज अ मिसकंसेप्शन कि आपको बहुत ज्यादा आना चाहिए। Obviously you need to have the knowledge, but if you want to just pass a few days before the exam, डायग्राम बहुत बार प्रैक्टिस करो, उसकी रेलेवेंट थ्योरी लिखो, and you are done with that particular topic. So don't get confused कि मेरे से एग्जाम तो पास नहीं हो रही, इतना पढ़ने का क्या फायदा। Now the next fifth lesson is कि रवि को came to know about IMP topic list from his senior, and now he just read that from the start of the unit. तो रवि को पता चल गया कि यार पूरा पढ़ना नहीं होता, ये पूरी बुक पढ़नी नहीं है, बस इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मुझे पढ़ना है, सीनियर ने मार्क करके दे दिए, या मेरे पास एक लिस्ट आ गई है उसमें से ही मैं पढ़ लेता हूँ। सो दिस इज अ गुड अप्रोच, बट ओनली फॉर योर एग्जाम्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको एब्डोमेन पेल्विस आपका यूनिट शुरू हुआ है और आप सीधा कुछ नहीं पता है आपको एब्डोमेन के बारे में, आप सीधा जाके किडनी पढ़ लेते हो, अब आपको पेरिटोनियम ही नहीं पता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गन रेट्रोपेरिटोनियल है, कौन सा नहीं है। तो it is very important to first of all, if you are having exams then it's fine, no issues, but if you are not having exams, you are reading a unit for the first time, please read the entire unit. आप पूरा याद मत रखो, I'm not saying to remember it everything, but what I'm saying is follow the 3-layer strategy. So now what is the 3-layer strategy? कि आप उसको पहली रीडिंग जब आप करोगे तो आप पूरी रीडिंग करो, उसमें आप मत सोचो क्या याद रखना है क्या याद नहीं रखना है, या आप अपनी कॉलेज की क्लासेस जैसी चल रही है उसके साथ साथ करते जाओ। सेकंड रीडिंग विल बी कि डायग्राम कॉपी जब बनाने का टाइम आया, आपने घर गए, आपने डायग्राम कॉपी बनाई, आपको पूरे सारे टॉपिक्स की डायग्राम्स नहीं बना सकते, तो आप IMP टॉपिक्स लो, लेकिन पढ़ो पूरा, और डायग्राम सिर्फ IMP टॉपिक्स के बनाओ, उनकी थ्योरी बनाओ। एंड द थर्ड लेयर वुड बी रिवाइजिंग इट कंप्लीटली। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि पहली लेयर स्टूडेंट्स मिस आउट कर देते हैं, दे स्टडी अपर लिम्ब पूरा, लोअर लिम्ब पूरा, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग रहता है। एब्डोमेन में आप सीधा लिवर उठा के पढ़ लेते हो, आपको कुछ पता नहीं इसके पहले क्या चल रहा है, तो आपको कैसे याद रहेगा? आपको याद रहेगा बट आपको समझ नहीं आएगा, रिटेन नहीं रहेगा, ठीक है। तो फोकस ऑन एंटायर यूनिट, एग्जाम के पहले जस्ट फोकस ऑन IMP टॉपिक्स। Now Ravi says it is not possible to study entire unit, so lesson number 6 will be follow the 3-layer strategy. Follow करके देखो, you will definitely be able to complete it. Now Ravi keeps on studying the text. This is lesson number 7. But when his friend asks कितना पढ़ा, तो he says nothing, कुछ नहीं पढ़ा मैंने, right? So this is a very common misconception. You guys need to understand कि नीट का जमाना खत्म हो चुका है, नीट UG का, आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से बाहर आ जाओ। अब आप जितना अपने फ्रेंड्स के साथ, भले आप बोस्ट मत करो कि मैंने इतना सारा पढ़ लिया, जस्ट बी हम्बल कि ठीक है मुझे ये टॉपिक आता है, तुझे आता है, चल डिस्कस करते हैं। सो नाउ दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस एनाटॉमी, स्पेशली टू रिटेन, ठीक है। अब रवि इज ट्राइंग ऑन रिया,
सो एटलीस्ट ही कैन ट्राई कि रिया हम एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, राइट? सो मे बी कबीर सिंह जैसे आपको उसके हाथ पे स्केच पेन से बनाने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू कैन आस्क ईच अदर सम क्वेश्चन कि एनाटॉमिकल स्टफ बॉक्स कहाँ होता है, क्या उसकी बाउंड्रीज है, तो दैट वे यू विल रिटेन इट मच बेटर वे कि यार उसने ऐसे याद कराया था, उसने ऐसे याद कराया था. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन द एनाटॉमी के जो रिलेशंस है, जो बाउंड्रीज है टू योर फ्रेंड्स, एंड एक्सप्लेन इट ऑलवेज वाया अ डायग्राम, राइट? देन द सॉर्ट ऑफ नेक्स्ट पॉइंट इज कि Ravi is now doing good, he is getting the idea कि it is very important to stay calm, but now he is very chill, उसको पता है upper limb lower limb हो गया, but he don't know the life after abdomen. So I want to make you alert, ठीक है? No matter whatever unit is going on, you need to understand that in anatomy, upper limb, lower limb and thorax, these are the lightest मतलब units in anatomy as of now, ठीक है? You might feel overwhelmed at the starting, इसलिए आपको पहले ये पढ़ा दिया जाता है कि आप एकदम डर नहीं जाओ. तो these are relatively easier units once you finish them, ठीक है? But once your college gets started with abdomen, pelvis, head and neck and neuroanatomy, these are the toughest units of anatomy, and these are super important because ये as it is आपको सर्जरी में भी काम आएंगे, और आगे चल के आपको कोई भी ENT भी पढ़ना हुआ, हेड एंड नेक बहुत काम आएगा, राइट? मे बी अपर लिम लोअर लिम आपका सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स में काम आएगा आगे चल के, सर्जरी में उतना ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, बट एब्डोमेन, पेल्विस, हेड एंड नेक ये सब सर्जरी में डिट्टो एज इट इज आते हैं, राइट? सो यू नीड टू फोकस देम ऑन वेरी वेल. सो नाउ आई विल टेल यू हाउ टू स्टडी यूनिट वाइज. सो अपर लिम्ब के लिए इट इज वेरी इजी, अपर लिम्ब हो चाहे लोअर लिम्ब हो, ऑलवेज रिमेंबर अ पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है? अगर मैं आपसे कहता हूँ आर्म, फोर आर्म, हैंड, तो आपको हैंड को एक अलग से एज अ यूनिट याद रखना है. हैंड है तो हैंड में आप कैसे याद रखोगे? एक एक चीजें सारी याद रखो, सारी पहले हैंड लिखो एक कोई भी चार्ट पे, राइट ऑल द मसल्स की हैंड में क्या क्या मसल्स होती हैं, फिर उनका एक कॉमन यूजुअली कॉमन नर्व सप्लाई होगा एक पूरे एक सेगमेंट का, तो 2 या 3 नर्व होगी जो कि अलग अलग करके सप्लाई करेंगे. तो प्रिपेयर कि उसका नर्व सप्लाई क्या है, ठीक है? देन प्रिपेयर सिमिलर वे कि ब्लड सप्लाई क्या है, वीनस ड्रेनेज, वो सब चीजें. तो एंड देन फोकस ऑन IMP टॉपिक्स लाइक जैसे अपर लिम्ब में ऐसे ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है? तो यू नीड टू फोकस इन सच अ मैनर कि यू नीड टू डू इट सेगमेंट वाइज इन अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब एंड इवन थोरैक्स, कि जो भी सेगमेंट आपका खत्म होता है उसको आप एज अ सेगमेंट याद करो, कि पूरा आर्म एक साथ याद करो, ठीक है? या तो पूरा रेडियल नर्व का कोर्स एक तरीके से याद रख सकते हो, या तो फिर सेगमेंट वाइज चलो और उसको आखिरी में कोरिलेट करो और आखिरी में एक एज अ नर्व वो चीज पढ़ो, ठीक है? सो दिस विल मोर और लेस बिकम वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू. आई डिड नॉट टू टेल दैट, आई वांट टू टेल यू अबाउट एब्डोमेन, पेल्विस, हेड एंड नेक एंड न्यूरो एनाटॉमी, ठीक है? तो दीज चैप्टर आर सच चैप्टर्स जिनके आप बिना डायग्राम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? तो इनके लिए आप इवन जो अच्छी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं जो डायग्राम्स के लिए काफी अच्छी रहती हैं, उनको भी आप रेफर कर सकते हैं. सो हाउ यू नीड टू प्रोसीड विद देम इज यू नीड टू प्रोसीड विद देम क्लिनिकली. तो क्लिनिकली का क्या मतलब है कि एब्डोमेन, पेल्विस हो, हेड एंड नेक हो, इन सब में जो भी आपके पार्ट्स आएंगे, जैसे आपका लिवर हो गया, तो लिवर एनाटॉमी के बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, ठीक है? कि लिवर के जब हम सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं, लिवर को जब हम अलग अलग जोन्स में काटते हैं, तो वो जोन्स आपको कैसे याद रखने हैं ताकि आप आगे चल के काट पाए, राइट? सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू बी वेरी थॉटफुल अबाउट कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट बिकम्स वेरी ड्रेनिंग, राइट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट इन एब्डो, पेल्विस, हेड एंड नेक इज कि यू नीड टू कीप देम रिवाइजिंग एंड इंटीग्रेटिंग. मतलब इफ आई से यू हेड एंड नेक, तो हेड एंड नेक में आप अलग अलग जगह अलग अलग चीजें पढ़ेंगे. आप फेशियल नर्व कहीं और पे पढ़ेंगे, आप मिडिल ईयर कहीं और पे पढ़ेंगे. जब आप मिडिल ईयर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें फेशियल नर्व का कोर्स होता है, फेशियल नर्व पढ़ेंगे तो उसमें भी पता चलेगा मिडिल ईयर का कोर्स होता है, ठीक है? बट आप अगर इनको अलग अलग पढ़ पाएंगे तो आप यू विल नेवर रिटेन, यू विल ऑलवेज हैव अ फियर. सो आप क्या करो, उसको सब जगह से एक जगह पे कंबाइन कर दो कि फेशियल नर्व अल्टीमेटली मिडिल ईयर साथ में पढ़ लिया, तो एटलीस्ट एक वो पूरा एक पोर्शन एज अ होल रिवाइज हो गया, ठीक है? मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन अलग है, उनके नर्व सप्लाई अलग है, उन सबको क्लब कर दो कि ये यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपर लोअर लिम्ब में यू नीड टू फोकस सेगमेंट वाइज, एंड देन एब्डोमेन, पेल्विस, हेड एंड नेक यू नीड टू फोकस योर बॉडी वाइज कि आपको क्या लग रहा है, क्या एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, तो पूरा उसको आप एज अ होल पढ़ो. देन नाउ फोकसिंग ऑन द न्यूरो एनाटॉमी थिंग. सो न्यूरो एनाटॉमी एक ऐसा यूनिट है जिसमें पढ़ने को बहुत सारा है. अगर आप पढ़ने बैठोगे सो इवन इफ यू आर हैविंग लेस टाइम इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. सो फोकस मोर अगेन ऑन द इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, एंड डोंट वरी अगर थोड़ी थ्योरी नहीं भी हो पाती, इट्स ऑल फाइन, यू विल गेट इट कवर्ड इन फिजियोलॉजी एज वेल.
and in upcoming years. Now in the general anatomy, histology, embryology, these are again some of the units which are very crisp. अगर आप एम्ब्रियोलॉजी अच्छे से पढ़ते हो तो यू विल डेवलप अ ग्रेट इंटरेस्ट इन दैट, बट अगेन ये काफी लेट पढ़ाया जाता है तो उस समय टाइम कम बचता है, एग्जाम का कंस्ट्रेंट रहता है, तो आई विल मेक यू अवेयर कि इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्टडी एवरीथिंग. सो अगेन यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन डायग्राम्स. एंड एक इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मैंने फर्स्ट जो हाउ टू स्टडी एनाटॉमी का फर्स्ट पार्ट है उसमें बनाए हैं कि जिसमें सिस्टम वाइज चार्ट्स हैं, तो आप अभी वो वीडियो जाके देख लो और उसको सेव करके रख लो, राइट. सो दिस इज व्हाट आई नीड टू टेल यू रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. So now guys, the motive for this particular video was कि just to address the problems that you are facing right now. Okay, this is something anatomy पढ़ना मतलब you can ask me 1 hour session वो भी कम पड़ जाएगा, right. So my motive was कि जो पहले पार्ट में मैं बता चुका हूँ उसको रिपीट ना करूँ और कुछ अलग बताऊँ और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ. So please watch the first part to develop a complete understanding if you have not, and if you are committing some more mistake apart from what Ravi does. रवि ने 8 मिस्टेक करी, क्या आप वो कर रहे हो या आप कुछ और कर रहे हो तो नीचे कमेंट करो, आई ट्राई टू रिजॉल्व इट, और बताइएगा नीचे कि क्या रवि को रिया मिल पाएगी, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज योर टाइम एंड डू फॉलो मी ऑन Instagram MathShots, and if you have any queries you can DM me. Thank you so much. Stay safe, stay healthy and keep learning.